Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 6 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, what I have been teaching in the last 5 lectures, I hope you are finding it no problem in understanding the concepts that I have been imparting to you. And you are doing some programming practice in your labs or in your homes so that you become familiar with the programming language C, which we will use for implementing the concepts which we will learn in this course. As usual, we will start the course with the summary of the previous lecture. In our last lecture, we discussed the concept of pointers. Pointers are very powerful data type, but they are difficult to master. They basically simulate the call by reference, and they have a very close relationship with the arrays and strings. A pointer is just like an integer. It holds a number, but the computer interprets it as the address of another object rather than a value. It must be declared in the beginning with its associated type, and it is useful for dynamic objects. A pointer is just like a memory location. A memory location is simply an integer value that we interpret as an address in memory. We also talk about the pointer operations and the pointer operators. We discussed the 2 pointer operators, that is address operator and indirection operator. Accessing an object through a pointer is called indirection. It contains the memory addresses as their values, and pointers, they contain address of a variable that has a specific value. We call it indirect reference. Indirection is basically referencing a pointer variable, and we use the symbol static with the pointer variables. Multiple pointers, they require static before each variable declaration. And you can also declare pointers to any data type with the help of void. And you can initialize the pointers to 0 or null or an address. The address of operator, which is the second operator, which is used with the ampersand sign, it obtains an object's address in the memory. It returns the address of the operand. And the indirection, which is also called the dereferencing operators, it refers to the objects the pointer pointed at. It returns a synonym alias of what its operands point to. It can be used, the indirection operator can be used for assignment, and it moves from address to the contents. Basically, this address, and we have also seen that the address operator and the indirection operator, they are the inverse of each other. Basically, they cancel the effect of each other. And a pointer variable is just a variable that contains a value that we interpret as a memory address. Just like an uninitialized integer variable holds some arbitrary garbage value, an uninitialized pointer variable points to some arbitrary garbage address. So what will happen if we follow a garbage address? It depends upon what is the arbitrary memory address is. If it is an address to memory that the operating system has not allocated to our program, then we will get a segmentation error. If it is a non-existent address, we got a bus error. And some systems, they required multiple data items like integers to be aligned, for instance, and it maybe have to start at an even number address or an address that is a multiple of 4. And if our access violates a restriction like this, we also get a bus error. And if we are really unlucky, we will access memory that is allocated for our program. Then in that case, we will destroy our own data. So it is recommended that never use an uninitialized pointer variable. Then we also talk about the pointer arithmetic. With the C language, it allows the pointer values to be incremented by the integer values. So we can use the increment, decrement operator, and we can also add an integer to a pointers using the plus operator, minus operator, plus equal to, minus equal to. And it means that pointer variables, they can be subtracted from each other.
and the operations, they become meaningless unless it is performed on an array. Pointers of the same type can be assigned to each other. If not the same type, a cast operator within the bracket that have to be used. Then we also talk about pointers and functions, where we talk about the pointer to function, which contains the address of function, similar of how array name is address of the first element, and function name is the starting address of code that defines the function. We also talk about the pass by value and pass by reference. More focuses on the pass of reference, because the pointer variable, they simulate the pass by reference. When a function parameter is passed as a parameter, as a pointer, so changing the parameter changes the original argument. So arrays are pointers, and we can use the array as arguments. Structures, they are also usually passed as pointers. And call by reference, with we talk about call by reference with pointer arguments, pass address of arguments using the AND operator, which allows you to change the actual location in the memory. And arrays are not passed with, because the array name is already a pointer. And in the end, we talk about the pointers and arrays. Pointers and arrays, they are closely related, and array name is like a constant pointer. Pointers can do the array subscripting operations, and we can use the addition, increment, and the subtraction operations. And array can also contains pointers, so it means the array elements can also be pointed to some other memory locations. So these are the topics that we have discussed in our last lecture, and I sincerely hope that these topics are well clear to you. We will now start the today's lecture. And the objectives of our today's lecture is we will talk about the dynamic memory management with pointers. We will talk about a little bit about structures, the unions, the strings, and briefly about the multi-dimensional arrays. We start with the dynamic memory allocation. In C and C++, three types of memory are used by our programs. One is the static memory, one is the heap memory, and one is the stack memory. The static memory is used for the global variables and static variables. It means global variables and static variables, they are normally declared outside the main function, and their lifetime is from the start of the program to the end of the program, and there is only one copy of them. The heap memory is basically dynamically allocated at execution time. We call it heap memory or free store. So all the unnamed variables which are dynamically allocated, they are managed through pointers, and they are allocated at runtime. And the third is static memory, which are used by automatic variables. Automatic variables are declared by the program by itself, and their function parameters, the result type of when a function is called, they are being allocated and referenced in the stack memory. The static data, which is allocated at the compiler time, or we call it a compile time, and the dynamic data is explicitly allocated and deallocated during the program execution. In the C++, you can use the instructions of new and delete. The automatic data is automatically created at function entry, resides in the activation frame of the function, and it is destroyed when you return from function to the calling function. Let's see in the diagrammically, because this is the lower end of the memory, this is the higher end of the memory. This is the program segment which contains the instructions written for your program, and this is the static data which contains the global variables and the static variables. And these are allocated, memory is allocated or determined at compile time, and actual memory is allocated at load time when the program is loaded into the memory. And after the static data comes the heap, and at the higher end is the stack, and they grew towards each other. And these memory are located in the higher side, and they are allocated at runtime when your program is currently being executed. The static allocation is determined at compile time, and it is allocated at load time. And dynamic allocation is the allocation of memory space at runtime as and when required.
And the dynamic allocation is useful when arrays need to be created whose extent is not known until runtime. It means अगर आपने कोई ऐसे array declare करने हैं जिसका प्रोग्राम के बनाते हुए आपको साइज मालूम नहीं है और रन टाइम पर आप एक किसी ज़रूरत के तहत उसको क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो हम डायनामिक एलोकेशन के ज़रिए करते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो इस डायनामिक एलोकेशन को हम यूजफुल उस वक्त हमारे लिए बहुत हो जाता है व्हेन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ अननोन साइज एंड और शेप they need to be constructed when the program executes or runs. And thirdly, when objects need to be created and the constructor arguments are not known until runtime, at that time we have to use the dynamic allocation. अगर हम थोड़ा सा memory management की overview को देखें तो the stack allocated memory is when a function is called, memory is allocated for all of its parameters and local variables. उस वक्त allocate की जाती है. So each active function call has memory on the stack with the current function is always at the top of the stack. और जब भी आपका फंक्शन कॉल ख़त्म होती है, टर्मिनेट होती है, कंट्रोल वापस कॉल प्रोग्राम को जाता है या कॉल फंक्शन को जाता है, तो उस वक्त द मेमोरी इज़ डी एलोकेटेड, या हम उसको कहते हैं कि मेमोरी फ्री अप हो गई. फॉर एग्जांपल कि आपका जो मेन फंक्शन है वो एफ फंक्शन को कॉल करता है, एफ फंक्शन जी को कॉल करता है और जी फंक्शन अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करता है. तो जब आपका मेन फंक्शन कॉल होगा तो आपकी स्टैक में सबसे पहले मेन फंक्शन आ जाएगा और उसके अंदर उसके लोकल वेरिएबल्स और उसके पैरामीटर्स आ जाएंगे. जब उसने फंक्शन एफ को कॉल किया तो वो उसके लिए स्टैक, उसके ऊपर स्टैक में उसकी एलोकेशन हो जाएगी. और उसके बाद जब एफ कॉल करता है जी को, तो जी की मेमोरी वेरिएबल्स और उसके जो लोकल वेरिएबल्स हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसकी जो रिटर्न अगर वैल्यू है तो उसकी स्टोरेज के लिए जगह एलोकेट हो जाती. और अगर जी ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन अपने आप ही को दोबारा कॉल करता है तो उसका एक सेपरेट स्टैक वहाँ पर मेंटेन हो जाएगा. तो अब उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हाउ, जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो हाउ डायनामिकली मेमोरी इज एलोकेटेड इन द स्टैक. और इसी तरह जब वो मुकम्मल होता है, वो वापस कंट्रोल जाता है जी को, तो उसका स्टैक में से गुजर जाता है एंड ओरिजिनल कॉपी ऑफ जी इज पॉइंटिंग एट द टॉप ऑफ द स्टैक. फिर जब वो जी एलोकेट मुकम्मल होकर जब वापस कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है एफ़ को, तो फिर एफ़ को चला जाता है और फाइनली वो जब एफ़ को टर्मिनेट होता है तो कंट्रोल वापस मेन को चला जाता है और उसके एलोकेशन डायनामिकली वहाँ से फ्री अप हो जाती है. और जब मेन प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो मेन के लिए भी जो एग्जीक्यूटेड हैं उनके लिए भी वो फंक्शन के लिए जो है वो जगह डी एलोकेट हो जाती है. तो अब सेकंड हम देखेंगे कि हीप एलोकेटेड मेमोरी. और हीप एलोकेटेड मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर परसिस्टेंट डेटा. It means that must survive beyond the lifetime of a function call. कि वो अगर फंक्शन कॉल, कि ये नहीं कि अगर वो फंक्शन कॉल के अंदर लोकल वेरिएबल है या पैरामीटर है तो वो एज लॉन्ग एज द फंक्शन इज एक्टिव तो वो स्टैक में रहेगा, मगर वंस द फंक्शन इज टर्मिनेटेड तो वो तो स्टैक से गायब हो जाएगा. तो इसके लिए हम हीप से एलोकेशन करते हैं फॉर जिसकी फंक्शन कॉल की ख़त्म होने के बाद भी उसकी एलोकेशन रहे. हम इसके लिए ग्लोबल वेरिएबल्स को चाहें तो हीप से एलोकेट कर सकते हैं एंड वी कैन आल्सो यूज़ फॉर द डायनामिक एलोकेटेड मेमोरी जो है वो उसके जिसमें जो है सी स्टेटमेंट्स में दे कैन क्रिएट न्यू हीप डेटा. और इसी तरह वो न्यू जैसे हम जावा या सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं तो उसकी मदद से हम इसको डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी यूज़ कर सकते हैं. तो हीप मेमोरी इज़ एलोकेटेड इन अ मोर कॉम्प्लेक्स वे देन द स्टैक मेमोरी. स्टैक मेमोरी तो है कि जब वो हमें कंपाइल टाइम पर मालूम होता है कि जी इस फंक्शन को जब ये कॉल होगा तो इसके कितने लोकल वेरिएबल्स, उसका क्या साइज़ है, उसके पैरामीटर्स कितने, उसका क्या साइज़ है, तो उसके मुताबिक जब एग्जीक्यूशन होगी तो हम उसके लिए एलोकेशन कर सकते हैं. मगर हीप एलोकेशन तो हमें वक्त से पहले मालूम नहीं होगा. वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसके लिए जगह जब ज़रूरत होगी हम क्रिएट करेंगे और जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो वी कैन डी एलोकेट दैम. So like stack allocated memory, the underlying system determines where to get more memory and the programmer doesn't have to search for the memory space. तो ये चीज़ें सिस्टम आपका मैनेज करता है. जो प्रोग्रामर है उसको ये खुद से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती कि वो हीप से कैसे एलोकेशन हो रही है और कैसे डी एलोकेशन हो रही है.
हम थोड़ा सा देखते हैं कि अगर आपने एलोकेशन करनी है फ्रॉम द हीप मेमोरी यूजिंग द सी लैंग्वेज, तो उसमें हम नॉर्मली करते हैं कि एक तो उसका जो बिल्ट इन फंक्शन हमें दिया गया है वो malloc है, और उसके अंदर आपने सिर्फ साइज बताना होना जिसका टाइप है साइज टी, ये डिफाइंड है सी लैंग्वेज में। एंड इट इज़ ये चूंकि वॉइड पॉइंटर है, इट मीन्स कि इट कैन पॉइंट टू एनी टाइप। तो वॉइड डिनोट्स अ जेनरिक पॉइंटर टाइप, वो किसी को भी पॉइंट कर सकता है, वो स्पेशली नहीं है कि वो इंटीजर के लिए होगा या कैरेक्टर के लिए होगा या स्ट्रक्चर के लिए होगा। तो बेसिकली ये जो malloc फंक्शन है, इसका काम क्या है कि इट एलोकेट्स अ ब्लॉक ऑफ साइज, जो जितनी आप उसको साइज बताएंगे उतनी बाइट्स का वो ब्लॉक क्रिएट करेगा, और उसके बाद हीप में से, एंड इट विल रिटर्न अ पॉइंटर टू दैट ब्लॉक। और अगर वो उसको एलोकेट नहीं कर पाएगा कि हीप की भी एक जगह मेंशन होती है, स्पेसिफिक होती है, अगर वो जगह ख़त्म हो गई है तो मज़ीद एलोकेशन नहीं हो सकती, तो वो नल की वैल्यू रिटर्न कर देगा। उसके अलावा एक अपना आपका सी अलॉक का भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, जिसके दो हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी बताते हैं और एलिमेंट साइज भी बताते हैं। तो इट एलोकेट्स द ब्लॉक ऑफ नम एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट साइज, और ये हमेशा बाइट्स में होता है। इनिशियली एवरी बाइट टू 0 इट विल रिटर्न टू द, एंड वो हर बाइट को इनिशियलाइज कर देगा विद द वैल्यू ऑफ 0, एंड इट विल रिटर्न अ पॉइंटर टू द ब्लॉक। और अगर वो अनएबल होगा तो वो नल क्रिएट करेगा। उसका ये जो फंक्शन डेक्लेरेशन है वो आपको बता रहा हूँ कि सी में ये, और इसको भी चूंकि इसकी भी रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड पॉइंटर है, इट मींस ये जेनरिक पॉइंटर टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा, किसी स्पेसिफिक टाइप का नहीं होगा। हम तो उस वक्त देखते हैं एक तीसरा फंक्शन भी जो है बिल्ट इन मौजूद है सी लैंग्वेज में, जिसको हम कहते हैं रीअलॉक। इसमें जो है वो दो पैरामीटर्स हैं इसके, एक पॉइंटर वॉइड पॉइंटर है और एक न्यू साइज है, और ये भी रिटर्न करेगा एक वॉइड पॉइंटर जो कि किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर आपको प्रीवियसली एलोकेटेड आपने ब्लॉक जो कि यूजिंग पीटीआर के ज़रिए आपने किया हुआ था, और अगर आपको ज़रूरत पड़ गई कि उसका साइज़ अब चेंज करना है, वो इनफ नहीं रहा, तो रादर देन कि उसको डी एलोकेट करें और नए सिरे से करें, तो जब आप डी एलोकेट करेंगे तो उसमें जो वैल्यूज़ पड़ी होंगी वो भी गायब हो जाएंगी। तो उसके लिए ये कि आप उसी को री एलोक कर लें, इट विल चेंज द ब्लॉक साइज, जो नए ब्लॉक साइज वो आप न्यू साइज में देंगे पैरामीटर में, एंड इट विल रिटर्न पॉइंटर टू द रीसाइज्ड ब्लॉक। और अगर ब्लॉक साइज इंक्रीज हुआ है तो कंटेंट्स ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मे बी कॉपीड टू अ completely different region, or in this case the pointer return will be different from the PTR argument, and PTR will no longer point to a valid memory region. और अगर पॉइंटर नल है तो रीअलॉक इज आइडेंटिकल टू malloc। तो जो इसमें नॉर्मली है कि आपको ये जब भी आप malloc करें या उसमें करें, तीनों के केस में यू नीड टू कास्ट रिटर्न वैल्यू, क्योंकि जो वॉइड पॉइंटर टाइप का होता है, तो इसलिए हम जैसे कह रहे हैं कि कैरेक्टर पी के लिए एक ऐसा पी इज़ अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, तो हम जब उसमें साइज़ करेंगे तो हम malloc से बफर साइज़ एक टेम्परेरी हम ले रहे हैं, और उसका जो रिटर्न टाइप आ रही है उसको हम कास्ट कर रहे हैं कि इट मस्ट पॉइंट्स टू अ कैरेक्टर टाइप। डी एलोकेटिंग के लिए जो है सी लैंग्वेज में वॉइड फ्री के नाम से है, और फ्री के जो है वो सिर्फ आपने वो पॉइंटर का वॉइड पॉइंटर टाइप का देना होता है। तो गिवन अ पॉइंटर टू प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी यू पुट द रीजन बैक इन द हीप ऑफ अनएलोकेटेड, वो आप उसको बता देते हैं कि अब हमें इस एरिया की ज़रूरत नहीं है, यू कैन यूज़ इट फॉर सम अदर पर्पसेस। क्योंकि सी में ये स्पेशल चीज़ है कि सी और सी प्लस में कि आपको जो भी malloc से या उससे एलोकेट करेंगे, आपको स्पेसिफिकली खुद उसको डिलीट भी करना पड़ेगा या उसको फ्री भी करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वो एलोकेटेड जगह रहेगी और उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जावा में ये इसको हम कहते हैं गार्बेज कलेक्शन, तो ये ऑटोमेटिक है, प्रोग्रामर को उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो सिस्टम खुद ब खुद फ्रीक्वेंटली चेक करके अगर जो अनयूज स्पेस है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेता है। इसमें यह ध्यान रखना है कि यू कैन ईजी टू फॉरगेट टू फ्री मेमोरी व्हेन नो लॉन्गर नीडेड, especially if you are asked if you are already used to a language with garbage collection like Java. तो this is the source of a notorious memory leak problem, जिसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, and it is very difficult to trace. The program will run fine for some time unless suddenly there is no more memory, because क्योंकि आपने जो यूज़ की मेमोरी उसको डी एलोकेट नहीं किया, तो कुछ अर्से के बाद जब हीप फुल हो जाएगी और अगर आप मज़ीद मेमोरी मांगेंगे तो रन टाइम एरर आएगा और आपका प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जाएगा, which you don't want to happen.
चेकिंग फॉर सक्सेसफुल एलोकेशन के लिए सबसे बेहतर है कि एक तरीकाकार हम आपको बता सकते हैं कि कॉल टू एमएलॉक माइट फेल टू एलोकेट मेमोरी इफ देयर इज नॉट एनफ अवेलेबल, and you can easy to forget this check, annoying to have to do it every time alloc is allocated. तो उसका solution है कि आप एक खुद डिफाइन कर लें एमएलॉक, डोंट कॉल एमएलॉक डायरेक्टली, और आप उसमें खुद ये कर लें कि अब ये हम डिफाइन कर रहे हैं कि एमएलॉक नम कॉमा टाइप, और इसको हम टाइप कास्टिंग करेंगे विद अलॉक नंबर ऑफ साइज ऑफ टाइप, और ये हम एक्सटर्नली उसको हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि अलॉक जो है उसका वो उसी एमएलॉक की तरह का ही काम करेगा. गार्बेज इंसर्टेड इनटू द सोर्स कोड इफ द प्रोग्रामर यूजेस एमएलॉक, यूज एमएलॉक इंस्टेड, हम ये वाला एमएलॉक करेंगे विच स्केल्स मेमोरी रीजन अप्रोप्रिएटली, नॉट यूज ऑफ पैरामीटर्स इन आल्सो कॉल्ड सेफ अलॉक फंक्शन. तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उसको हम कर रहे हैं. तो ये अब जो अलॉक हमने एक्सटर्नली डिफाइन किया हुआ है उसको हम ये कर रहे हैं कि हम न्यू मेमोरी के ले रहे हैं एक पॉइंटर टू अ वॉइड, उसके ज़रिए हम नल को उसमें कर रहे हैं, और अगर नल जो है वो उसकी अगर एमएलॉक वैल्यू रिटर्न नल करता है तो हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे विद द एरर कोड 1, इट मीन्स कि देयर इज़ एन एरर, और अगर नहीं है तो चूँकि एमएलॉक एलोकेट कर देगा और उसका साइज जनरेट करेगा, तो वो चूँकि इसके रिटर्न होगा तो वहाँ से हम बड़ी आसानी से इसको अपने प्रोग्राम में हैंडल कर सकते हैं. And nice solution है as long as it terminates the program is always the right response. जो memory के errors आपको dynamically आ सकते हैं कि using memory that you have not initialized, using memory that you do not own, किसी और की है, and using more memory than you have allocated, तब भी errors आ सकते हैं, and use faulty heap memory management के तौर पे भी errors आ सकते हैं. इनको हम briefly थोड़ा सा देख लेते हैं. यूजिंग मेमोरी दैट यू हैव नॉट इनिशियलाइज्ड क्या होगा. अब उसमें दो किस्म के एरर्स आ सकते हैं. अनइनिशियलाइज्ड अगर आप मेमोरी को रीड करें तो क्या होगा, एंड अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी को अगर आप कॉपी कर लें तो क्या होगा. नॉट नेसेसरी क्रिटिकल है, बट अनलेस अ मेमोरी रीड इज फॉलोज. हम यहाँ पर बेसिकली देख रहे हैं कि एक हमने फंक्शन है, उसमें एक पैरामीटर है पाई के नाम से जो कि पॉइंटर टू एन इंटीजर है. हम लोकल एक पैरामीटर लोकल वेरिएबल लिया जे इंटीजर टाइप का है, और हमने क्या किया कि जे की वैल्यू जो कि अभी तक उसमें कोई इनिशियलाइज नहीं थी वही हम वैल्यू दे रहे हैं इस पॉइंटर पाई की वैल्यू को. तो ये जो है अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी कॉपी हो जाएगा क्योंकि जे इज अनइनिशियलाइज था, तो उसकी जो भी गार्बेज उसमें वैल्यू पड़ी होगी वो पी आई के अंदर कॉपी हो जाएगी. एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हम इसमें हम अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी रीड को देखेंगे कि हमने वॉइड किया बार को और इंट i10 लिया और उस आई को पॉइंटर भेज दिया, और मगर इस फू के अंदर जब हमने इसको कॉल किया तो हम ऑलरेडी आई की बजाय उसको वो पॉइंट कर रहे हैं जे को. तो जब हम उसको यहाँ पर तो हम आई ही पॉइंट करवाएंगे, तो यहाँ पे यूजिंग आई विच इज़ नाउ अ जंक वैल्यू, तो ये अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी रीड हो गया जो कि यहाँ इस हरकत की वजह से आया था. इस जो आपकी असाइनमेंट थी जो कि गलत होनी लॉजिकली गलत थी, उसकी वजह से यहाँ पर ये अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी रीड हो गया. तो यहाँ पर आपको ये आप हतमी तौर पर नहीं कह सकते हैं कि ये 10 ही डिस्प्ले करेगा, ये हमेशा कोई जंक वैल्यू होगा क्योंकि आपने इस फू के अंदर इसकी वैल्यू को चेंज किया था और उसको जे को असाइनमेंट दी थी और विच इज़ अनइनिशियलाइज्ड. यूजिंग अब सेकंड केस है कि जब जो एरर्स आ सकते हैं तो यूजिंग मेमोरी दैट यू डू नॉट ओन, उसमें नल पॉइंटर का रीड राइट है या 0 पेज रीड राइट हो सकता है. तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं और उसके अंदर एक हम इंटीजर वैल्यू है, एक उसका नोड है, उसी तरह पॉइंटर टू अ नोड है और उसको हम नाम दे रहे हैं नोड. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फाइंड लास्ट नोड वैल्यू एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हम पॉइंटर भेज रहे हैं. तो अगर हेड आपका ऑलरेडी नल है तो क्या होगा. हम यहाँ पर तो ये चेक कर रहे हैं कि वाइल हेड ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप तो हेड ऑलरेडी नल है. इफ हेड इज ऑलरेडी नल तो ये नल पॉइंटर रीड राइट हो जाएगा, इसको रीड करने की कोशिश करें जो आपको है ही नहीं है. और यहाँ पर आप कर रहे हैं रिटर्न द वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो आप उसमें हेड में डाल रहे हैं, और विच एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग अ 0 पेज रीड राइट, क्योंकि यहाँ पर आप जो उसको कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं उसको एक्सेस करने की, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा
क्योंकि यहाँ पर हेड आपको मिलेगा ही नहीं, हेड टू पॉइंटिंग टू नल, तो वो जब नल है वो किसी रिकॉर्ड को पॉइंटर नहीं कर रहा तो उसके रिकॉर्ड के फील्ड को आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो ये आपका 0 पेज रीड राइट एरर्स हो सकता है। यूजिंग मेमोरी दैट यू डोंट ओन, उसमें एक और इनवैलिड पॉइंटर रीड राइट भी हो सकता है कि पॉइंटर टू मेमोरी दैट हैजंट बीन एलोकेटेड टू प्रोग्राम। इसकी हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हम एक फंक्शन लिखते हैं gen IPR, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम स्टार्ट में हमने दिया है IPR इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, और हमने उसको 4 इंटू साइज ऑफ इंटीजर के हिसाब से एमएलॉग स्पेस ली और उसको टाइप कास्ट करके हमने इसके अंदर वैल्यू डाल दी। आई और जे दो सिंपल इंटीजर टाइप के हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक आई के अंदर हमने क्या किया कि उसको पॉइंटर अरिथमेटिक की IPR -1000 करके उसकी वैल्यू को हमने आई में कर दिया, और जे को हमने IPR से इसके ज़रिए प्लस कर दिया। एंड यू कैन नाउ एक्सपेक्ट द IPR मीन्स इनवैलिड, क्योंकि जब आपने पॉइंटर अरिथमेटिक को पॉइंट तो कर देगा, मगर आपको ये नहीं पता कि वो किसको पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है इनवैलिड पॉइंटर रीड हो जाएगा, और उसके बाद आप उसको फ्री कर रहे हैं, मीन्स कि आप जो एलोकेशन हुई हुई है उसको आप फ्री कर रहे हैं। ये है जनरेट द IPW मीन्स इनवैलिड पॉइंटर राइट। उसमें हमने वही हम काम कर रहे हैं कि एक वो पॉइंटर लिया और उसको हमने पहले मेमोरी डायनामिकली एलोकेट कर दी विद द हेल्प ऑफ द एमएलॉग फंक्शन, और हमने उसमें जो है वो क्या किया कि इस दफ़ा हम उसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब कर रहे हैं तो बेसिकली वो हमें उस एलोकेशन से गड़बड़ हो गई, ये 1000 बाइट्स का चक्कर चल जाएगा। हम उसको साइज ऑफ इंट जो कि नॉर्मली 4 या 2 बाइट्स होता है, तो उसके हवाले से जब हम उसको कर रहे हैं तो वो हम गलत जगह पर राइट कर रहे हैं जो हमारे प्रोग्राम को ऑन नहीं करता, और उसके बाद हम फ्री कर रहे हैं। तो दीज आर द लॉजिकल मिस्टेक्स जो आप कर सकते हैं। सिंटेक्स के हवाले से ये चीज़ें ठीक हैं, इट विल नॉट गिव एनी एरर एट कंपाइल टाइम। या रन टाइम पर जो है इसका बिहेवियर अनडिटरमिन्ड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, एंड इट विल गिव यू रॉन्ग रिजल्ट्स एंड विच विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कॉमन एरर जो 64 बिट ऑपरेशंस में है कि इंट्स आर 4 बाइट्स बट पॉइंटर्स आर 8 बाइट्स। तो इफ प्रोटोटाइप ऑफ एमएलॉग इज नॉट प्रोवाइडेड, रिटर्न वैल्यू विल बी कास्ट टू अ 4 बाइट इंट। तो इफ यू फॉरगॉट टू, अगर आपने उसको ये भूल गए उसको एलोकेट करना, अगर आपने यही काम उसमें किया और PI of 0 को 10 कर दिया, तो देन यू कैन एक्सपेक्ट एन इनवैलिड पॉइंटर राइट। और उसके बाद अगर उसको दिखाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप उसको एक तो गलत उसको राइट कर रहे हैं, और यहाँ से आप उसको गलत रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखें कि ये कॉमन एरर है, क्योंकि एमएलॉग जो है वो अगर आप उसको वो वाला फंक्शन नहीं देंगे तो ये गड़बड़ करता है। 4 बाइट्स विल बी लूप्ड ऑफ दिस वैल्यू रिजल्टिंग इन एन इनवैलिड पॉइंटर वैल्यू। फ्री मेमोरी रीड राइट के भी एरर्स आ सकते हैं कि एक्सेस ऑफ मेमोरी दैट हैज़ बीन फ्रीड अर्लियर, कि ऑलरेडी आपने उसको डी एलोकेट कर दिया, उसको दोबारा जब आप रीड करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं इनिट एरे, और वो इंटीजर पॉइंटर टाइप का देगा। हम 2 पॉइंटर भेज रहे हैं इन पॉइंटर, और हम क्या कर रहे हैं कि उसको पॉइंटर के अंदर री अलॉक कर रहे हैं विद द साइज ऑफ इंट। उसके बाद हमने मेमोरी को सेट किया, मेम सेट किया विद दिस, और उसके बाद हमने यहाँ से अगर आप ये देखेंगे न्यू साइज के हवाले से, उसके बाद हम पॉइंटर को रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पर हम एक और फंक्शन फिबोनाची का कॉल कर रहे हैं, जिसके अंदर तो यहाँ पर हमने वी फॉरगॉट टू इसको हम इनिशियलाइज करें, और फिब को हम भूल गए हैं। तो इनिट एरे जब हम ये करेंगे तो फिब ऑफ 0 इज 0 एंड फिब ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम ये करेंगे तो ये आपका फ्री मेमोरी चूँकि ऑलरेडी हो चुकी है तो इट विल रिटर्न अ एरर। रीअलॉग में मूव द एंटायर ब्लॉक, तो यहाँ पे जब आप उसको रीअलॉग को पूरा ब्लॉक ही भेज चुका है। एंड बट इफ एरे इज मूव टू न्यू लोकेशन, तो यहाँ पे जब आप इनिट एरे कर रहे हैं विद फिब एंड साइज, तो यहाँ से वो गड़बड़ हो जाएगी। बियॉन्ड द स्टैक अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अगर हम ये देखें तो ये हम एक लिख रहे हैं कि जिसमें हम 2 कैरेक्टर टाइप के भेज रहे हैं, अपेंड करना चाह रहे हैं, और हम ये कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं 128, और उसकी वजह से हम कैरेक्टर स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं। रिजल्ट्स इन लोकल एरे नेम, स्टैक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और उसके लिए हम उसके अंदर जो है कुछ स्ट्रिंग लेंथ के हवाले से कुछ उसमें कर रहे हैं। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंक्शन रिटर्न्स पॉइंटर टू स्टैक मेमोरी वोंट बी वैलिड आफ्टर द फंक्शन रिटर्न, क्योंकि जब फंक्शन रिटर्न हो गया तो उसको वो पॉइंट नहीं कर पाएगा।
आप रिजल्ट के ऊपर ये सारा कुछ भेज रहे हैं और वंस इट इज़ आउट तो ये जो रिटर्न करने के बाद तो इट्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि आप स्टैक में ही सारा कुछ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपका वो रिजल्ट है वो आपका एक लोकल वेरिएबल है और इट विल हैव द वैल्यू ऑफ ये डी एलोकेट हो जाएगा, तो ये स्टैक में मौजूद ही नहीं होगा। तो आप इसको एज अ रिटर्न वैल्यू भेज रहे हैं पॉइंटर, तो जो कॉल्ड फंक्शन है वो जब इसको रिजल्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी। यूजिंग मेमोरी दैट यू हैवंट एलोकेटेड, एरे बाउंड के हवाले से रीड राइट का हम ये देख रहे हैं कि यू जनरेट एन एरे बाउंड रीड एंड एरे बाउंड राइट। हम उसमें कॉन्स्टेंट कैरेक्टर के हवाले से सेफ्टी क्रिटिकल हमने लिख दिया और अब हमने एक नया लिया है str इज अ कैरेक्टर एरे और उसको हमने मैम एलोकेशन में 10 बाइट्स दे दिए हैं और हम यहाँ से strn कॉपी के जरिए क्या कर रहे हैं कि ये जो है स्ट्रिंग में नेम कॉपी कर रहे हैं और उसकी 10 वैल्यूज़ कॉपी कर रहे हैं। तो अब यहाँ जब कॉपी होगा तो सेफ्टी क्रिटिकल में तो उसमें 11वीं बाइट्स पर हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको 0 कर रहे हैं। तो जब एलोकेशन ही हमने 10 बाइट्स की है तो 11वीं बाइट पर हम कैसे ये कर सकते हैं, तो ये आपको एरर हम बता रहे हैं कि ये रन टाइम पे ये एरर होगा, लॉजिक एरर होगा, यू आर एक्सपेक्टिंग एन एरे बाउंड राइट। और इसी तरह जब उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ये चूंकि हुआ नहीं होगा तो ये एक्सपेक्ट करेंगे आप एरे बाउंड राइट रीड। तो ये इस किस्म का आपने बहुत ध्यान रखना है प्रोग्रामिंग करते हुए कि यू शुड नॉट मेक दीज काइंड ऑफ लॉजिकल एरर्स। फॉल्टी हीप मैनेजमेंट भी हो सकती है जिसमें मेमोरी लीक है, कि हम इसमें ये देख रहे हैं कि हम एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया टू एन इंटीजर टाइप और हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें हमने इंट के हिसाब से 8 को मल्टीप्लाई किया और एक नया ब्लॉक लेके इंटीजर टाइप का उसकी हम वैल्यू दे रहे हैं पाई में। इट मीन्स वी आर एलोकेटिंग मेमोरी फॉर पाई एंड अगर आप ये देखेंगे कि यू लीक द ओल्ड मेमोरी पॉइंटेड टू बाई पाई, क्योंकि पाई चूँकि ग्लोबल वेरिएबल था और उसको ऑलरेडी उसकी जगह थी एलोकेटेड, तो वो जो भी जगह होगी उसको आप ओवरराइट कर रहे हैं और यहाँ से आप फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फू इज़ डन विद पाई सो फ्री इट। मगर मेन प्रोग्राम में आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आप जो ऑलरेडी आपने किया है एक जगह एलोकेट की और उसके बाद आपने फू कॉल किया और वो फुल कॉल में नए सिरे से आप एलोकेशन कर रहे हैं तो वो पुराना जो है वो मेमोरी वो जो हीप में है वो एलोकेटेड रहेगी, मगर यू लॉस्ट द एड्रेस तो इट कैन कंटेन आल्सो अ लॉजिकल एरर, उसको आप दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पोटेंशियल मेमोरी लीक और है कि देयर इज नो पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ अ ब्लॉक and it's not necessarily critical but block beginning may still be reachable via the pointer arithmetic। वही हम इसमें देखते हैं कि हमने नल किया, एक पॉइंटर इंटीजर लिया उसको नल असाइन कर दिया और हमने उसमें हम जनरेट कर रहे हैं पोटेंशियल मेमोरी लीक। वो क्या कैसे कर रहे हैं कि हमने एक malloc के ज़रिए 2 into साइज ऑफ इंट के हिसाब से सिस्टम का तो जगह एलोकेट की, पॉइंटर टू इंटीजर बनाया और उसका एड्रेस हमने PLK में डाल दिया। तो यू एक्सपेक्ट द PLK एज पॉइंटर वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड पास्ट बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक और उसके बाद आपने PLK प्लस कर दिया तो ये जो है वो उसको एलोकेशन के बाद आप उसको ऐड कर देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक जो है वो गो के एलोकेटेड है मगर यू हैव लॉस्ट इट बिकॉज आपने एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस मॉडिफाई कर दिया है। तो दिस कैन पोटेंशियल मेमोरी लीक को भी आपने ये जहन में रखना है ड्यूरिंग योर प्रोग्रामिंग कि दिस शुड नॉट हैपन। उसके अलावा हम फ्री कर सकते हैं नॉन हीप मेमोरी को एंड यू फ्रीइंग द अनएलोकेटेड मेमोरी। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे हम ये फ्री कर रहे हैं ऐसी मेमोरी को जो कि आपने अभी ये नॉन हीप मेमोरी है, यू आर फ्रीइंग द स्टैक मेमोरी, वो फ्री कर रहे हैं स्टैक मेमोरी को जो कि उनके ये लोकल फंक्शन का लोकल वेरिएबल है तो इसकी एलोकेशन हमेशा स्टैक में होती है और आप इस कमांड के ज़रिए उसको हीप से करें। ये भी एक फॉल्ट है और इसका एरर आएगा, इसका बिहेवियर क्या होगा रन टाइम पर वो आप चेक कर सकते हैं। हम ये दूसरा है कि यहाँ पर हम उसके अंदर एक लोकल पॉइंटर वेरिएबल लिया तो यहाँ से हमने मेमोरी एलोकेशन की
उसको अरिथमेटिक किया +1 तो यू एक्सपेक्ट दी अनएलोकेटेड मेमोरी, क्योंकि फर्म +1 पॉइंट्स टू द मिडल ऑफ अ ब्लॉक। उसके बाद आपने फ्री किया फर्म को, उसके बाद फ्री किया फर्म को, तो यहाँ पर आप बेसिकली अनएलोकेटेड मेमोरी को फ्री कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको फ्री कर चुके हैं, दोबारा कैसे फ्री करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ एरर्स यू कैन सिंपली थोड़ी सी गलती की वजह से हो सकते हैं, बट दे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एट रन टाइम। एरर्स आएंगे एंड यू हैव टू रिमूव देम यूजिंग सम डिबगिंग टेक्निक्स। बट माइंड इट, आपको बताने का मकसद ये है कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करें तो इस किस्म के पॉइंटर्स का बहुत इस्तेमाल होगा, तो इसको बड़ा ध्यान से डिक्लेयर करना है, इस्तेमाल करना है। तो हीप के अगर हम थोड़ा सा देखें तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि इट्स अ रीजन ऑफ मेमोरी प्रोवाइडेड बाय मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर एलोकेटिंग स्टोरेज। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट के डिसिप्लिन का नहीं है, इट्स बिकॉज ये स्टैक नहीं होता है। इट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली एलोकेटेड एंड इट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली रिलीज्ड एंड इट मे बी एक्सेस्ड ओनली विद पॉइंटर्स, जिसको आप सिर्फ पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एंड रिमेंबर एरे आपका जो है इट्स इक्विवेलेंट टू अ पॉइंटर। और मैनी हैजर्ड्स हैं सी प्रोग्रामर के लिए, कुछ हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, कुछ को और देख सकते हैं। वो ये कि ये प्रोग्राम का स्टैटिक कोड है, ये स्टैटिक डेटा जिसमें ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। डायनामिकली हीप यहाँ पर होती है, दिस इज द हीप। स्टैक भी डायनामिकली लोकेटेड, ये हायर एड्रेसेस की तरफ होती है, इसको पॉइंट कर रहा था टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर। एलोकेटिंग मेमोरी हमने आपको जैसे बताया कि एमएलॉग से और उससे कर सकते हैं। फ्री अलॉग हमने इसको एक नज़र देख लिया है। क्विकली allocates the size bytes of memory from the heap and returns a pointer to it. Null pointer if allocation fails for any reason. Free क्या करता है? It returns the chunk of memory pointed to by PTR must have been allocated by malloc या cloc के साथ। सेगमेंटेशन फॉल्ट हो जाती है कि अगर आप इसके ज़रिए अगर बैड पॉइंटर हो तो। और फ्री का अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, फ्री नोज द साइज ऑफ चंक एलोकेटेड बाय malloc और cloc, तो वो उसी को ही डी एलोकेट करता है। cloc is just a variant of malloc. Malloc is analogous to the new in the C++ and Java. New in C++ actually basically backend पे वो भी malloc को ही कॉल करता है। Free is analogous to delete operator in C++. Delete in C++ actually calls वो free ही को backend पे कॉल करता है। Java उसके अंदर does not have the delete because it uses the garbage collection to recover memory no longer in use, और उसमें Java में आपकी garbage collection automatic होती है। तो टिपिकल यूज़ हम अगर हम ये देख रहे हैं कि हम जैसे है कि ये गेट टेक्स्ट फ्रॉम समवेयर और उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर हम उसको फ्री कर रहे हैं। तो गेट टेक्स्ट जो है इट क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग यूजिंग द malloc, उसमें हम malloc के ज़रिए करके तो वहाँ से हम उसको वापस कर रहे हैं। तो मेन प्रोग्राम में कोई भी टेक्स्ट है वो इस पॉइंटेड टू वो कैरेक्टर है, तो यहाँ से हम उसको कॉल करके उसकी जो रिटर्न टाइप है विच इज़ अ कैरेक्टर पॉइंटर, वो हम उसमें टेक्स्ट में स्टोर कर रहे हैं और जो भी आएगा तो टेक्स्ट रिटर्न उसको हम यहाँ पर, और यहाँ पर आखिर में हमने उसको फ्री करना है txt को, ताकि वो जिसको पॉइंट कर रहा है तो उसकी जगह वो हीप से वो ख़त्म हो जाए। Pointer to text is assigned to text in the calling function, और main is just must remember to free the storage pointed to by the text. Memory leak को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। The steady loss of available memory due to forgetting free everything that was mallocked. bugaboo of most large C and C++ programmers। बहुत मैं आपको इसलिए बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ कि if you forget the value of a pointer to a piece of malloc memory, there is no way to find it again. बेसिकली उसके लिए आपको अपना प्रोग्राम टर्मिनेट करना पड़ेगा टू फ्री ऑल द मेमोरी, नथिंग एल्स, और आपका जो बेसिक पर्पस है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इसको C++ के हवाले से देख लें तो इन C जो फंक्शन सच एज malloc आर यूज्ड टू डायनामिकली एलोकेट मेमोरी फ्रॉम द हीप। इन C++ this is accomplished using the new and delete operator. तो new जो है it is used to allocate memory during the execution time. ये new क्या करता है कि it returns a pointer to the address where the object is to be stored. वो हीप से एलोकेशन करेगा और उसका वो malloc की तरह ही है कि उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो रिटर्न करेगा। Always returns a pointer to the type that follows the new.
जैसे हम यह कह सकते हैं कि न्यू डाटा टाइप, या हम इसको न्यू को डाटा टाइप के साथ इंट एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। तो अगर तो ये मेमोरी अवेलेबल होगी और ये हीप से लेगा तो इन एन एरिया कॉल्ड द हीप, और फ्री स्टोर भी इसको बाज टर्म्स में कहा जाता है, रिमेन्स द सेम। तो न्यू क्या करेगा, इट एलोकेट्स द रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट और एरे या रिटर्न अ पॉइंटर, और जिसको और उसका एड्रेस जो है वो रिटर्न करेगा। अदरवाइज द प्रोग्राम टर्मिनेट्स विद द एरर मैसेज, अगर वो नहीं कर पाएगा। और द डायनामिकली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, कि जब तक आप उसको स्पेसिफिकली डिलीट ऑपरेटर के साथ डिलीट ना कर दें। हम यहाँ पर इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि जो डायनामिक डेटा होता है उसका कोई वेरिएबल नेम नहीं होता, उसका मेमोरी एड्रेस होता है, मगर उसको अपने प्रोग्राम में आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। हमेशा भी जब भी एक्सेस करेंगे थ्रू पॉइंटर वेरिएबल ही करेंगे। तो इफ़ यू लॉस्ट द एड्रेस समहाउ तो यू कैन नॉट रिकवर इट। हम ये क्या कर रहे हैं कि ये एक पॉइंटर पीटीआर जो है इज़ अ पॉइंटर टू कैरेक्टर। तो बेसिकली पीटीआर मेमोरी में एलोकेशन होगी, पीटीआर उसका एड्रेस है 2000। अब उसके अंदर वैल्यू फिलहाल अनइनिशियलाइज्ड है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है विद द हेल्प ऑफ न्यू कैरेक्टर, तो उसने हीप से एक जगह एलोकेट की और उसका एड्रेस था 5000, और वो एड्रेस न्यू ने जब पीटीआर में कॉपी किया, असाइनमेंट हुई, तो पीटीआर के अंदर अब एड्रेस हो गया। अब इसको हम कहते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट। ये डायनामिकली एलोकेटेड है, इसका एड्रेस है मगर इसका एड्रेस सिर्फ इसको पता है। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि आप उस पॉइंटर के अंदर कैरेक्टर बी को स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद उसको अपप्रिंट कर रहे हैं। तो नल पॉइंटर क्या है? There is a pointer constant called the null pointer denoted by null, but null is not a memory address 0. तो बेसिकली नल जो है वो सिर्फ ये बताता है कि वो किसी वैलिड एड्रेस को पॉइंट कर रहा है कि नहीं। It is an error to dereference a pointer whose value is null. Such an error may cause your program to crash or behave erratically. It is the programmer's job to check for this. तो जब आप ये चेक कर लेते हैं कि अगर वो नल के बराबर नहीं है तो देन सेफ है। अगर आप नल के बगैर अगर वो नल हुआ और आपको किसी में इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो जहाँ पर न्यू ऑपरेटर है उसके लिए करस्पॉन्डिंग C++ में डिलीट भी है और ये आपने इस्तेमाल करना है। इसके दो सिंटैक्स हैं, एक डिलीट पॉइंटर है और एक डिलीट के साथ ये जब हम दो ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो इट्स अ पॉइंटर। बेसिकली ये सिंगल वेरिएबल के लिए है और ये एरेज या ऑब्जेक्ट्स के लिए है। The object or array currently pointed to by pointer is deallocated and the value of pointer is undefined. The memory is returned back to the free store या heap को वापस चले जाती है, and the good idea is to set the pointer to the released memory to null. जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं when you have to delete a deallocate a dynamically allocated array। जब आपने एरेज डायनामिकली एलोकेट करके उनको आपने डीरेफरेंस करना हो या उनको वापस फ्री स्टोर में भेजना हो तो फिर हम उसको डिलीट के साथ ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे। वही एग्जांपल है, उसको ऑपरेटर को हम ये देखते हैं कि जब हमने ये देखा था उसमें कि हमने उसको पहले किया, यहाँ से हमने उसको वैल्यू दे दी पॉइंटर क्रिएट करके और उसके बाद हमने उसको किया। तो यहाँ पे जब हम डिलीट कर रहे हैं तो वो जो वेरिएबल है वो डिलीट हो गया है एंड नाउ द पॉइंटर PTR उसके अंदर एड्रेस अब क्या है वो हमें नहीं मालूम। डीएलोकेट्स द मेमोरी पॉइंटेड टू बाय PTR। इसको एग्जांपल के जरिए हम फिर देखते हैं कि हमने कि कैरेक्टर लिया है पॉइंटर टू अ कैरेक्टर टाइप, उसका स्टार्टिंग एड्रेस हो सकता है मेमोरी में ये हो, उसके अंदर वैल्यू अनडिफाइंड। यहाँ पर आपने क्या किया कि अब हम उसको एलोकेशन कर रहे हैं एक एरे की जिसका एरे है 5 और न्यू के जरिए उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है 6000 वो इसमें आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, strcopy का एक फंक्शन कॉल किया जिसमें बाई को उसमें PTR में डाल दिया गया। तो बाई जो है वो इसमें अंदर डाल देगा वो। और उसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं कि PTR 0 के अंदर U का कैरेक्टर आपने कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि इसको डिलीट कर दिया। PTR को जब डिलीट कर रहे हैं तो ये सारा it deallocates the array pointed to by PTR,
PTR itself जो है वो डीएलोकेट नहीं हुआ, वो मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है, बट नाउ द वैल्यू ऑफ PTR बिकम्स अनडिफाइंड। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जब हम उसको नल बजाते खुद असाइन करेंगे, देन इट विल बिकम नल, अदरवाइज वो अनडिफाइंड होगा। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। तो मेमोरी लीक्स को एक नज़र फिर हम देखते हैं कि व्हेन यू डायनामिकली क्रिएट ऑब्जेक्ट्स you can access them through the pointer which is assigned by the new operator. So reassigning a pointer without deleting the memory it pointed to is previously is called a memory leak. It results in the loss of available memory space. यानी कि आप इसमें ये कर रहे हैं कि आपने डायनामिकली न्यू ऑपरेटर से जगह क्रिएट कर ली, उसके बाद उसका एड्रेस जो है उसके अंदर जो पॉइंटर वेरिएबल था उसके अंदर कोई और एड्रेस डाल दिया, तो वो जो जगह आपने न्यू के जरिए एलोकेट की थी वो तो एलोकेटेड है, बट उसका जो एड्रेस है वो आपने गुमा दिया, लॉस्ट कर दिया। अब वो जगह एलोकेटेड रहेगी बट आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जब आप ये भूलते जाएंगे या इस किस्म की मिस्टेक करते जाएंगे तो जगह एलोकेट होती जाएगी मगर आपको मालूम नहीं होगा, और किसी वक्त आप जब ज़रूरत के मुताबिक दोबारा न्यू करेंगे तो वो हीप, चूंकि अब उसमें जगह मौजूद नहीं होगी, तो वो रन टाइम एरर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि दो वेरिएबल ले रहे हैं, PTR1 और PTR2, दोनों इंटीजर टाइप के हैं और उनको इनिशियलाइज कर रहे हैं विद द टू न्यू वेरिएबल्स एंड। और उसके बाद हम PTR1 में 8 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं और PTR2 को 5 की वैल्यू दे रहे हैं। तो ये भी हीप से एक एनोनिमस हुआ और उसका एड्रेस PTR में आ गया। ये एनोनिमस सेकंड वेरिएबल हुआ, उसका एड्रेस PTR2 में आ गया। यहाँ पर हमने असाइनमेंट की, उनकी वैल्यूज़ की, एक में 8 और एक में 5 असाइन किया। अब हम उसके बाद हमने क्या किया कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि जो PTR का एड्रेस है वो PTR2 में दे दिया। तो सिचुएशन क्या होगी कि PTR अब 1 और PTR2 they are now both pointing to 8। अब 5 allocated है but you lost the address, वो आपने PTR को modify कर दिया। अब आप इसको कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास इसका प्रोग्राम के पास एड्रेस ही नहीं है और ये हीप से allocated है। वहाँ पर ये मेंशन होगा कि this area of memory is allocated to a program। इसको बचाया कैसे जा सकता है? तो फिर आप जो है इसको ये ध्यान करना है कि ये इसको या तो फ्री करें पहले ताकि वो उसमें चला जाए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है इसको फ्री कर दें और फ्री करने के बाद आप इसकी असाइनमेंट करें। ये इसको हम कहते हैं इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट इज एन अननेम्ड ऑब्जेक्ट दैट वाज क्रिएटेड बाय द ऑपरेटर न्यू एंड विच अ प्रोग्रामर हैज लेफ्ट विदाउट अ पॉइंटर टू इट। इट इज अ लॉजिकल एरर एंड कॉजेज मेमोरी लीक्स। इसको आपने ध्यान में रखना है। अब एक दूसरा केस आपको बताते हैं जिसमें होता है डैंगलिंग पॉइंटर, उसको हम कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। इट इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू अ डायनामिक मेमोरी दैट हैज बीन डीएलोकेटेड। ये ऐसी हम मेमोरी एलोकेशन को वो पॉइंट कर रहा है जो कि अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जिसको हम ऑलरेडी दिए। एंड द रिजल्ट ऑफ डी रेफरेंसिंग अ डैंगलिंग पॉइंटर इज अनप्रेडिक्टेबल। अब आप उसका रिजल्ट क्या होगा वो अनप्रेडिक्टेबल है। एग्जाम्पल के ज़रिए वही हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम इसमें हम यही वो है कि PTR को जो है वो हमने न्यू इंट लिया, उसने एक जगह एलोकेट की हीप से, और उसके बाद हमने जो है वो ये क्या किया कि सबसे पहला जो PTR2 को भी एलोकेट कर दिया। ये स्टैटिक रहेंगे, ये स्टैक में से हैं। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर वैल्यू डाल दी 8 और PTR2 को जब हमने असाइनमेंट की तो बेसिकली जो PTR1 का एड्रेस था वही कॉपी हो गया PTR2 में। अब दे आर बोथ पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन। और अगर आपने गलती से ये स्टेटमेंट दे दी डिलीट PTR1 तो बेसिकली होगा ये कि जब आप डिलीट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, इट विल गो बैक टू हीप और इसका एड्रेस तो यहाँ से गायब हो जाएगा, मगर PTR अब इसको पॉइंट कर रहा है, इसका एड्रेस तो पड़ा हुआ है। तो अब ये PTR के जरिए अगर आप एक्सेस करेंगे तो वो क्या वैल्यूज़ देगा वो अनडिफाइंड है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि अब आप उसके ज़रिए एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं विच यू हैव ऑलरेडी डी एलोकेटेड। तो इसको से भी बचना चाहिए।
तो आपने मेमोरी लीक्स को भी अवॉइड करना है अपनी प्रोग्रामिंग में और डैंगलिंग पॉइंटर्स को भी करना है। तो इसको प्रोग्रामिंग कोडिंग करते वक्त इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। थोड़ी सी बात करेंगे अब हम डायनामिक एरेस को कि यू वुड लाइक टू यूज एन एरे डाटा स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा अभी आएगा, बट यू डू नॉट नो द साइज ऑफ द एरे एट कंपाइल टाइम, आपको मालूम नहीं है। तो you find out when the program executes that you need an integer array of size, let's suppose 20, तो you allocate an array using the new operator, हम उसको कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा कि y is a pointer to integer, तो new int 20 करेंगे या new int y is equal new int n भी कर दें, तो उसमें क्या होगा कि बेसिकली वो 20 इंटीजर का एरे लेके उसका स्टार्टिंग एड्रेस y में दे देंगे। उसके ज़रिए जब आप y0 या y1 को करेंगे तो वो सेम रहेगा और उसका एक्सेस वो जो है बड़ी आसानी से हो जाएगा। y must be an L value, it is a pointer that holds the address of 20 consecutive cells in memory. So it can be assigned a value, the new operator returns an address that is stored in y. तो यू कैन राइट बाय इस तरह भी है कि y x0 को भी आप कर सकते हैं और x इक्वल टू y एंड द x कैन अपीयर ऑन द राइट, y गेट्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ द x एरे। एंड ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जब वी मस्ट फ्री द मेमोरी वी गॉट यूजिंग द न्यू ऑपरेटर वंस वी आर डन विद द y एरे, तो फिर हमें ये y डिलीट का सिंटेक्स जो है विद द ब्रैकेट्स हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। And we would not do this to the X array because we do not use new to create it. यहाँ तक हमने बात की, आज हमने डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट की और उसके अलावा डायनामिक एरेस की। अब हम उसके बाद आज के नए दूसरे टॉपिक्स पर चलते हैं। वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स जो है इट्स द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, या उसको ये भी एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, एग्रीगेट है। और इसका डिफरेंस बेसिकली अगर हम एरे से कंसिडर करें तो यही है कि एरे इज अ कंपोजिट या स्ट्रक्चर डेटा टाइप के जिसमें तमाम एलिमेंट्स की टाइप एक होती है, होमोजीनियस है। स्ट्रक्चर्स जिनको बाज़ लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, बट इसको हेट्रोजीनियस टाइप कहेंगे। इसमें जो एलिमेंट्स हैं ऑफ द स्ट्रक्चर दे कैन बी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, और मगर इनको आप जो है प्रोग्राम के अंदर अंडर वन नेम करते हैं। And they can contain variables of different data types. तो ये इसमें फ़र्क है एरे में और उसमें। तो commonly they are used to define records which are used to be stored in files. तो हम ये कह सकते हैं कि structures, इनको हम C में और C++, Java वगैरह में structures कहते हैं। Structures are the heterogeneous data structures and basically ये related जो attributes हैं उनको ये collectively store करेगी। And you can combine them, the structures, with pointers, and you can create the linked list, stacks, queues and trees, जो कि हम इस कोर्स में आगे देखेंगे। इसलिए मैं आपको स्ट्रक्चर्स, मुझे कभी उम्मीद है कि आपने इसको सी लैंग्वेज में ऑलरेडी कवर किया हुआ होगा प्रोग्रामिंग के कोर्स में, मगर मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू यहाँ पे देना चाहूँगा जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, और क्योंकि आपने इसको आगे इस्तेमाल भी करना है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं स्ट्रक्चर डेफिनेशन के लिए कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एग्जांपल में वी आर डिफाइनिंग स्ट्रक्चर जिसका स्ट्रक्ट है, नाम उसकी टाइप का कार्ड है, और उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम यहाँ पर फील्ड कहते हैं। एक फेस फील्ड है विच इज़ अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर टाइप, एंड सूट भी पॉइंटर टू अ कैरेक्टर है। तो struct introduces the definition for structure, card is the structure name, and it is used to declare the variables of the structure type. और card contains two members, both इस केस में तो दोनों की टाइप कैरेक्टर पॉइंटर ही है, और इनको हम these members are called face and suit. तो struct की इंफॉर्मेशन का अगर हम उसमें थोड़ा सा देखें, a struct cannot contain an instance of itself, वो अपने आप का इंस्टेंस नहीं रखेगा, but it can contain a member that is a pointer to the same structure type. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रक्चर का जो फील्ड है वो खुद अपने आप को एज अ फील्ड नहीं रख सकता, मगर उसका अपने आप को पॉइंटर वो फील्ड रख सकता है। Can contain a member that is a pointer to the same structure type.
A structure definition does not reserve the space in memory. Compile time पर वो सिर्फ size determine करता है, memory allocation नहीं करता. Instead, it creates a new data type used to declare the structure variables. तो वो बेसिकली जो है वो उस टाइप डिफाइन करता है, उसके बाद उसको हमें वेरिएबल्स के लिए अगर क्रिएट करने हो तो एक डिफरेंट स्टेटमेंट देनी पड़ती है. तो उसका तरीकाकार क्या हो सकता है? डिक्लेरेशन, यू कैन डिक्लेयर द कार्ड द वेरिएबल्स लाइक दैट कि आप कार्ड के जो है वो आपको बताएंगे. तो जैसे कार्ड जो है इट्स स्ट्रक्चर टाइप है, तो आप यहाँ उसके ये सिंगल स्ट्रक्ट है, ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर है, और सी पॉइंटर इज अ पॉइंटर टू स्ट्रक्ट टाइप. तो यू कैन यूज़ अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ पर आप डिफाइन करें, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करें, वहीं पर आप उसके मेंबर्स को भी यानी कि वेरिएबल्स को करेंगे तो साथ ही डिफाइन करा देंगे. तो इस केस में यहाँ पर आप नई टाइप डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर की कि जिसमें दो फील्ड्स हैं, एक का नाम फेस है, एक का नाम सूट है. बोथ ऑफ देम आर पॉइंटेड टू कैरेक्टर्स. और यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं जिन तीनों की टाइप ये स्ट्रक्चर कार्ड होगी. ये 2 डिफरेंट तरीके हैं कि आप इसकी डेक्लेरेशन अलहदा करें और डेफिनेशन यहाँ करें, या उन दोनों को आप कंबाइन भी कर सकते हैं. इसमें जो वैलिड ऑपरेशंस हैं कि यू कैन असाइन अ स्ट्रक्चर टू अ स्ट्रक्चर ऑफ द सेम टाइप, उनकी असाइनमेंट आप कर सकते हैं. यू कैन टेक द एड्रेस ऑफ अ स्ट्रक्चर, जो एड्रेस ले सकते हैं, एंड एम्परसेंड जो है ऑपरेटर के साथ, या जिसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं. आप मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं. And you can also use the size of operator to determine the size of a structure. क्योंकि इसके number of elements fix होते हैं, इसलिए ये compile time पर इसको determine करना बहुत आसान होता है. आप इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को, जैसे आपने वही हमने किया कि कार्ड जो है, वन कार्ड इज़ अ मेमोरी वेरिएबल ऑफ टाइप कार्ड स्ट्रक्चर. तो उसमें हम 3 और हार्ट्स जो है वो उसको फेस और सूट के लिए बता रहे हैं. असाइनमेंट स्टेटमेंट्स भी हम दे सकते हैं. एग्जांपल जैसे हम ये कर सकते हैं कि उसके बाद हम एक और वेरिएबल कर सकते हैं 3 हार्ट्स, और हम 1 कार्ड को असाइन कर सकते हैं 3 हार्ट्स के. एंड यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज 3 हार्ट्स एज फॉलोज कि आप उसको डिक्लेयर करें और फिर आप उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को जब आप एक्सेस करेंगे तो यूजिंग, इसको हम कहते हैं डॉट ऑपरेटर. ये ख्याल रखिएगा कि जो फील्ड्स होते हैं स्ट्रक्चर के, उनको डॉट के साथ हम करते हैं, क्योंकि वो हर का नेम डिफरेंट होता है. उसके केस में, एरेज के केस में, तो हम इसकी जो है सब्सक्रिप्ट जो एलिमेंट है उसके ज़रिए कर सकते थे, क्योंकि वो होमोजीनियस डाटा टाइप था तो उसमें इंटीजर ही होते थे. मगर यहाँ पे चूँकि ये हेट्रोजीनियस है तो हर किसी का फील्ड का नाम डिफरेंट होगा, तो इसलिए उसकी हम एक्सेसिंग भी हम डॉट से करेंगे, तो हम उसके ज़रिए भी उसकी असाइनमेंट कर सकते हैं. जैसे इस एग्जांपल में हम 3 हार्ट्स के अंदर वो 3 और हार्ट्स को अलग-अलग भी असाइनमेंट कर सकते हैं. एक्सेसिंग, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, यू हैव टू यूज़ अ डॉट ऑपरेटर यूज विद स्ट्रक्चर वेरिएबल्स. तो जब आप उसको प्रिंट करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर उसका एक इंडिविजुअल फील्ड एक्सेस करके उसको प्रिंट करना है. एंड इट ऑल्सो अलाउज दी ऑपरेटर, जिसको हम ये पॉइंटर के साथ यूज़ होता है विद पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल्स. जैसे हमने ये एक एग्जांपल यही लेते हैं कि ये माई कार्ड PTR इज़ अ पॉइंटर टू कार्ड स्ट्रक्चर. यहाँ पर हमने माई कार्ड का एड्रेस दिया है. जब हम उसको प्रिंट करवाना चाहेंगे, उसके सूट को प्रिंट करवाना चाहेंगे, तो फिर हम उसको इस जो है वो सिंटेक्स से करेंगे. और इसको इज इक्वलेंट टू जो है वो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप पॉइंटर के अंदर वो उसका एड्रेस दे के डॉट सूट, वो उसकी एड्रेस कैलकुलेशन होगी और फिर होगा. तो चाहे आप यू लिखें या इसको इस मेथड से करें, दे आर बोथ इक्वलेंट. व्हेन यू आर एक्सेसिंग अ फील्ड ऑफ अ पॉइंटर इनडायरेक्टली, तो फिर आपको नॉर्मली हम ये इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, मगर आप चाहें तो यूं भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. सी कंपाइलर विल नॉट जनरेट एन एरर. यूजिंग स्ट्रक्चर विद फंक्शंस है, तो पासिंग आप उसी तरह जैसे हमने एरेज को पास किया था टू फंक्शंस, तो यू कैन आल्सो पास स्ट्रक्चर टू फंक्शंस. यू कैन पास द एंटायर स्ट्रक्चर और यू कैन आल्सो पास द इंडिविजुअल मेंबर्स एज अ पैरामीटर. और मगर बोथ पासेज, चाहे आप पूरा स्ट्रक्चर पास करें या उसके इंडिविजुअल मेंबर को करेंगे, तो वो पास बाय वैल्यू होगा. आप आप स्ट्रक्चर्स को पास बाय रेफरेंस भी कर सकते हैं. यू कैन पास इट एड्रेस एंड यू कैन पास अ रेफरेंस टू इट. या रेफरेंस के हवाले से करेंगे या उसको एड्रेस पर, तो वो पॉइंटर के थ्रू ही होगा.
to pass arrays called by value, you create a structure with the array as a member and you can pass the structure. Type def एक और वो type define करते हैं कि it creates synonym or aliases for the previously defined data types. तो use type def to create shorter type names. For example, जो आप type define कर रहे हैं कि struct card, now is we also call it pointer to card ptr. तो ये basically इसी structure का type है. Define the new type name card ptr as a synonym for the type struct card. उसके हवाले से कर रहे हैं, but ख्याल रहे कि type def does not create a new data type, it only creates an alias. Already created type को वो एक नया नाम दे देगा. हम कुछ देखते हैं, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि जिसमें हम स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं. वही हमने लास्ट टाइम जो एक गेम की थी कि हाई परफॉर्मेंस कार्ड शफलिंग एंड डीलिंग सिमुलेशन जो हमने की थी, उसी को हम थोड़ा सा अब स्ट्रक्चर्स के हवाले से देखते हैं. तो उसका सूडो कोड टॉप लेवल पर क्या है कि वी विल क्रिएट एन एरे ऑफ कार्ड स्ट्रक्चर्स. अब हम उसको इंडिविजुअल की बजाय हम कार्ड स्ट्रक्चर के हवाले से देखेंगे. वी विल पुट द कार्ड्स इन द डेक. हम डेक को शफल करेंगे एंड देन वी विल डील द कार्ड. हम इस एग्जांपल को ज़रा देखते हैं. तो इसमें हमने उसको बेसिकली उसका जो पहला जो काम है उसको हमने चार सब उसमें डिवाइड किया है. वी विल लोड द हेडर्स, वी विल डिफाइन द स्ट्रक्ट function prototypes, we initialize the deck and face arrays and then we'll initialize the suit array. तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ये वो पहला लोडिंग द हेडर फाइल जो कि हम सी लैंग्वेज की बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं. कार्ड को जिसमें हम बता रहे हैं कि फेस जो है इट्स अ कांस्टेंट कैरेक्टर, पॉइंटर टू अ कांस्टेंट कैरेक्टर है. सूट भी उसी तरह का है. यहाँ पर हम टाइप डेफ के ज़रिए उसका नाम अब आइंदा से कैपिटल सी के साथ कार्ड रख रहे हैं. और यहाँ पर हम जो तीन फंक्शन है उनकी हम सिर्फ डेक्लेरेशन दे रहे हैं कि फिल डेक है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, और उसमें पॉइंटर टू है कॉस्ट पॉइंटर है. उसके अलावा हम एरेज पास कर रहे हैं दो, विच इज़ अ कॉस्ट पॉइंटर कांस्टेंट टाइप के हैं, और कैरेक्टर पॉइंटर टू कैरेक्टर्स हैं. शफल कर रहे हैं जिसमें हम कार्ड का वो एज एन पॉइंटर भेज रहे हैं. डील है जिसमें हम कॉस्ट के साथ हम उसको भेज रहे हैं. और यहाँ पर हम जो है ये बेसिकली मेन प्रोग्राम में क्या किया कि सबसे पहले हमने डेक डिफाइन किया है एक कार्ड टाइप का स्ट्रक्चर, और वो उसको एरे का है. 52 मेंबर्स हैं. तो हर जो मेंबर है उसके दो फील्ड्स हैं, उसका एक फेस होगा और उसका एक सूट होगा. और यहाँ पर हमने क्या किया है कि बेसिकली जो कांस्टेंट कैरेक्टर फेस के हवाले से हमने उसको फिक्स किया है 13. तो वो एस, ड्यूस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक, क्वीन एंड किंग के साथ किया. सूट चूँकि कार्ड्स में 4 होते हैं तो हमने उसके लिए कांस्टेंट कैरेक्टर वो पॉइंटर वो बता के हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स और स्पेड्स. और यहाँ पर हम जो है वो रैंडम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये उसको रैंडमली हम करेंगे. और अगर हम नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे हमने रैंडमाइज कर लिया है. उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से हम डेक को फिल करेंगे, शफल करेंगे, उसके बाद डील करेंगे और फिर प्रोग्राम को हम नॉर्मली टर्मिनेट कर देंगे. तो ये हमने उसकी यहाँ पर कॉलिंग की है. अब यहाँ पर हम उन तीनों फंक्शंस की बारी बारी डेफिनेशन दे रहे हैं. थोड़ा सा देखते हैं. तो यहाँ पर हम जो है वो अगर ये डेक वो जो है हमारा वो जो स्ट्रक्चर टाइप का वो है, और फेस और सूट को हम यहाँ से भेज रहे हैं. तो बेसिकली अब उस फिल डेक में क्या हो रहा है कि इट्स अ पॉइंटर, इसको हम यहाँ पे कहेंगे डब्ल्यू डेक, और यहाँ से हम डब्ल्यू फेस और डब्ल्यू सूट का उसका नाम रख रहे हैं जो कि कांस्टेंट टाइप के हैं, फिक्स्ड हैं. और यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि उन 52 वैल्यूज़ में हम उसको जो है वो वहाँ से फेस को जो है वो उसमें फेस में स्टोर कर रहे हैं, और सूट को सूट में स्टोर कर रहे हैं. और शफल में हम क्या कर रहे हैं कि वो उसी को डेक को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं. यहाँ से हमने उसकी वैल्यूज़ ले ली, और उसके बाद जो है वो हम ये 13 मीन्स कि हम उसको वहाँ से डिवाइड कर रहे हैं. और ये जो है आपका ये परसेंट जो है बेसिकली आपका रिमाइंडर देता है, और ये आपका एक क्वेश्चन देता है. तो उस हवाले से वो सूट देगा कि वो 13 से जब भी डिवाइड करेंगे आई की वैल्यू ये 51 के हिसाब से, तो वो सूट के जो है वो 13 को करेंगे. तो ये फेस में उसके सिर्फ वो फेस आएगा, और ये आपका रिमाइंडर देगा. तो रिमाइंडर में चूँकि 0 to 12 हो सकता है, तो उस केस में वो फेस का अगर 0 होगा
तो वो उसका फेस एस ड्यू से वो करेगा, और सूट में जो है चूँकि उसको आप इसका क्वोशंट लेंगे तो 52 डिवाइडेड बाय 13 इज 4, तो मैक्सिमम 0 1 2 3 ही आएंगे क्योंकि हम 51 तक जा रहे हैं। तो जब तक वो चलता रहेगा तो उस हिसाब से वो सूट दे देगा। शफल कर रहे हैं हम उसमें, यहाँ पर हम उसका पॉइंटर वो भेज के, और हम उसका कार्ड टाइप का जो है टेम्परेरी तौर पर भी ले रहे हैं। और अब उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि रैंडम करके तो जे को हम जो रैंडम वैल्यू लेंगे जो जे में आएगी, और हम क्या कर रहे हैं कि उसके फर्स्ट वैल्यू को आई को पहले हम टेम्प में रखेंगे, वो टेम्परेरी वेरिएबल में रख के अब हम क्या कर रहे हैं कि उसकी जे की वैल्यू आई में दे रहे हैं और आई में अंदर हम टेम्प वैल्यू दे रहे हैं। तो बेसिकली हम उसको शफल कर रहे हैं रैंडमली ताकि वो जो है वो शफल हो जाए। इसमें बेसिकली इट विल पुट ऑल द 52 कार्ड्स इन द डेक, फेस एंड सूट्स आर डिटरमिन्ड बाय द रिमाइंडर एंड द मॉडुलस। और यहाँ पर हम रैंडम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं बिटवीन 0 and 51 एंड इट विल स्वैप द एलिमेंट आई विद दैट एलिमेंट। और तीसरी जो हमारी डीडिंग वाली है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम उसी को 51 टाइम करके अब सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि उसके फेस को और सूट को हम सिर्फ जो है वो कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर हम पॉइंटर अरिथमेटिक के साथ करके सिर्फ वो टैब्स और न्यू लाइन को ही सिर्फ ऐड करना चाहेंगे। तो we will cycle through the array and we will print out the data using the उसके जो फील्ड्स हैं, इसलिए हम डॉट ऑपरेटर यहाँ पे हम वो वाला सिंटैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप ये देखें तो ये प्रोग्राम आउटपुट आएगी, तो ये 52 कार्ड्स को आप ये देखें तो वो रैंडमली ही उसको प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ डायमंड्स आएगा, फिर एस ऑफ हार्ट्स, राइट ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ स्पेड्स, 7 ऑफ हार्ट्स। तो इस तरह ये देखेंगे टोटल 52 को वो रैंडमली उसने डिस्प्ले कर दिया है। तो सी के जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली एग्रीगेट हैं मगर उसके साथ साथ स्केलर है। एग्रीगेट इन दैट दे होल्ड मल्टीपल डेटा आइटम्स एट वन टाइम। उसको मेंबर्स कहते हैं, दे होल्ड ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक द नोशन ऑफ अ क्लास और फील्ड बट विदाउट द डेटा हाइडिंग फीचर। इसमें डाटा हाइड नहीं होता, इजीली एक्सेसिबल होता है। कि स्केलर किस सेंस में है कि सी ट्रीट्स ई स्ट्रक्चर एज अ यूनिट, एक यूनिट के तौर पर लेता है। एज अपोज टू द एरे अप्रोच, अ पॉइंटर टू अ कलेक्शन ऑफ मेंबर इन मेमोरी होता है। एंटायर स्ट्रक्चर्स, not just pointer to structures, may be passed as function arguments. You can assign them to variables, etc. Interestingly, they cannot be compared using the relational operator equal. उसका रैशनल क्या है कि ये बहुत इनएफिशिएंट हो जाता है कि आप उसको दो स्ट्रक्चर्स को इस तरह एग्जैक्टली करें। डिक्लेरेशन के लिए जो है यू कैन कंबाइन दी वेरिएबल एंड टाइप डिक्लेरेशन, स्ट्रक्ट टैग आएगा, मेंबर लिस्ट आएगी, उसके बाद आप वेरिएबल लिस्ट। एनी वन ऑफ द 3 पॉइंट पोर्शंस यू कैन आल्सो बी एडमिट, यू कैन ओमिट द टैग। तो स्ट्रक्ट इंट ए बी कैरेक्टर ये भी एक्स वाई के जरिए कर रहे हैं। तो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई डिक्लेयर्ड विद मेंबर्स एज डिस्क्राइब्ड, इंट मेंबर्स ए एंड बी एंड कैरेक्टर पॉइंटर सी। दो मेंबर्स इंट हैं जिनको हम ए एंड बी का नाम दे रहे हैं। एक्स एंड वाई हैव सेम टाइप बट डिफर फ्रॉम ऑल अदर्स इवन इफ देयर इज अनदर डिक्लेरेशन। अगर हम ये भी करेंगे तो z हैज़ अ डिफरेंट टाइप फ्रॉम x एंड y। उसके अगर हम ये देखें तो हम यू कैन ओमिट द वेरिएबल्स, हम सिर्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो सो नो वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड बट देयर इज नाउ अ टाइप स्ट्रक्ट s दैट कैन बी रेफरेंस टू लेटर। उसके बाद हम omit members भी कर सकते हैं। given an earlier declaration of struct s, this declares a variable of type of that type. टाइप डेफ के ज़रिए भी हम कर सकते हैं। ये हम तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, मैं आपकी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए कर रहा हूँ। एंड दिस विल क्रिएट अ सिंपल टाइप नेम s, मोर कन्वीनियंट दैन struct s। रिकर्सिवली डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे हमने कहा था कि obviously you can't have a structure that contains an instance of itself as a member. Such a data item would be infinitely large, but within a structure you can refer to structure of the same type via pointers. जैसे कि हम एक स्ट्रक्ट बना रहे हैं ट्री नोड जिसमें एक लेबल है विच इज़ अ पॉइंटर टू कैरेक्टर, उसके अलावा हम जो है लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड भी पॉइंटर्स ले रहे हैं, मगर इन पॉइंटर्स की टाइप स्ट्रक्ट ट्री नोड जो कि इटसेल्फ जो हम डिफाइन करते हुए वो हो सकती है। ख्याल रहे कि इसके अंदर सिर्फ पॉइंटर्स के साथ आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं, दूसरी आप डायरेक्ट एज इसी के अपनी टाइप का कोई मेंबर नहीं हो सकता।
When two structures refer to each other, one must be declared in incomplete या स्कूप्रो टाइप फैशन। जैसे स्ट्रक्ट ह्यूमन है, आप उसको सिर्फ बता रहे हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्ट पेट है, उसको आप बता रहे हैं कि वो एक स्ट्रिंग ऑफ है, ऑफ नेम। स्पीशीज भी कैरेक्टर स्ट्रिंग्स है। यहाँ पे स्ट्रक्ट ह्यूमन है विच इज ये पॉइंटर टाइप का है। ओनर इज अ पॉइंटर टू स्ट्रक्ट ह्यूमन। और यहाँ पर आप इस इनिशियलाइजेशन सिर्फ इन दो की करेंगे, बाकी की नहीं करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ह्यूमन में भी जो है वो आप एक नेम दे रहे हैं और उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि वो क्या हो सकता है। We can't initialize the owner member at this point since it hasn't been declared yet। सिर्फ उसको हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, इनिशियलाइज इसलिए डिक्लेयर बाद में किया है। You can access with the dot operator। Direct access है subscript and dot operators have the same precedence and associated left उनकी association left to right होती है, so we don't need parentheses for sam dot pet 00 तो species। Indirect अगर एक्सेस है तो वो पॉइंटर के थ्रू है, उसके हम इनडायरेक्ट एक्सेस करते हैं विच इज इक्वल टू स्टैटिक एस और डॉट एम। इसको डी रेफरेंस अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर देन रिटर्न्स अ मेंबर ऑफ दैट स्ट्रक्चर। डॉट ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस दैट इनडायरेक्शन ऑपरेटर, सो पैरेंथेसिस आर नीडेड। अगर जब इसमें उसकी जो है वो डॉट की वो जो है वो हायर प्रेसिडेंस है तो उसको ऊपर आपको लगाना पड़ता है, अदरवाइज अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो या आप इसको इस तरह डिक्लेयर करें रेफरेंस या इस तरह करें, दे आर बोथ सिमेंटिकली सेम। ये इवेल्युएटेड फर्स्ट होगा एक्सेस ओनर मेंबर बिकॉज डी रेफरेंस टू ह्यूमन एंड दे हैव द इक्वल प्रेसिडेंस एंड एसोसिएशन इनकी लेफ्ट राइट है, क्योंकि इसमें इनकी दोनों की लेवल इक्वल है। और एसोसिएशन अगर एक लेवल की होंगे तो लेफ्ट वाला पहले होगा, राइट वाला बाद में होगा, तो इसलिए हम इसको इस तरह लिखेंगे। मेमोरी लेआउट अगर हम देखें तो एक और एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक स्ट्रक्ट किया है कॉस्ट के नाम से, जिसके अंदर हमने दो फील्ड्स हैं, एक अमाउंट है टाइप एंड और एक करेंसी टाइप, उसको जो है वो दो है, कैरेक्टर टाइप की करेंसी है और ये एरे है टाइप 2। और ये अगर हम उसको देखेंगे तो वो कॉस्ट के अंदर ये दो फील्ड्स हैं, एक अमाउंट है चूँकि इन टाइप 4 बाइट ले रहा है और ये एक कैरेक्टर 1-1 बाइट ले रहा है। पार्ट को हम देखना चाहेंगे, पार्ट इज द लेआउट ऑफ स्ट्रक्चर पार्ट, इट्स द कैरेक्टर ID2, तो वो यहाँ पर आ रहा है। स्ट्रक्ट कॉस्ट है उसका वेरिएबल आप दे रहे हैं तो वो यहाँ पर रख रहा है। एंड इंट नम अवेलेबल विद थर्ड एलिमेंट जो है वो इंट नम है, वो 4 बाइट्स ले रहा है। Here the system uses 4 bytes alignment of integers, so amount and num avail must be aligned। उसको हमें अलाइन करना पड़ेगा। 4 bytes wasted for each structure, क्योंकि अलाइनमेंट का चक्कर भी है। अब बेटर ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है फ्रॉम अ स्पेस पर्सपेक्टिव कि आप जो है वो कॉस्ट को पहले डिफाइन करें, स्ट्रक्चर को, वो फील्ड को पहले ले जाएं, उसके बाद कैरेक्टर ID ले जाएं और फिर इसको नाम को करेंगे। तो चूंकि उसने इनको इक्वलेंट 4 के ऊपर करना है तो यहाँ पे वो सेव स्पेस हो जाएगी। तो दिस किस्म की टेक्निक्स भी हम जो है वो प्रोग्राम की एफिशिएंसी और बेटर मैनेजमेंट के लिए हम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को अगर हमने एज अ फंक्शन आर्गुमेंट्स भेजना हो तो स्ट्रक्चर्स आर स्केलर, सो दे कैन बी रिटर्न एंड पास्ड एज आर्गुमेंट्स जस्ट लाइक इंट्स एंड कैरेक्टर्स। जैसे हम एक स्ट्रक्चर बिग चेंज स्ट्रक्ट बिग एस, तो इसको हम कॉल बाय वैल्यू कहेंगे। टेम्परेरी कॉपी है ऑफ स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। क्वेश्चन है कि अगर आप लार्ज स्ट्रक्चर्स को भेज रहे हैं पास बाय वैल्यू तो इनएफिशिएंट हो जाएगा बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉपिंग। And you can also avoid by passing a pointer to the structure instead, तो आप उसको पॉइंटर के जरिए भी भेज सकते हैं। तो अगर प्रॉब्लम ये है कि अगर इफ़ द स्ट्रक्ट आर्गूमेंट इज़ रीड ओनली और उसको मॉडिफाई नहीं करना, तो सेफ अप्रोच ये है कि यूज़ द कॉन्स्ट, उसको आप कांस्टेंट बना देंगे तो फिर वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर जो सी में मैं उसको थोड़ी सी ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ द यूनियन। A memory that contains a variety of objects over time only contains one data member। वो एक वक्त में एक ही डाटा मेंबर रहेगा। मेंबर्स ऑफ अ यूनियन जो हैं वो एक वक्त में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ओनली वन विल एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। और उसकी जो मेमोरी एलोकेशन होती है कि जो सबसे बड़ा जो फील्ड होता है सिर्फ उसके हिसाब से मैक्सिमम जगह एलोकेट की जाती है और उसको फिर हम अल्टरनेटिवली इस्तेमाल करे जाते हैं। ओनली द लास्ट डेटा मेंबर डिफाइंड कैन बी एक्सेस जो होगा। इसकी डिक्लेरेशन उसी तरह है जैसे हम स्टार्ट के करते हैं कि यूनियन
उसके बाद टैग आएगा और उसके बाद उसके वो मेंबर्स होंगे और फिर के बाद हम उसको डिफाइन करेंगे विद अ वेरिएबल। स्टोरेज में साइज ऑफ यूनियन इज द साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट मेंबर, जो उसका साइज लार्जेस्ट मेंबर का होगा वही उसका साइज होगा। अवॉइड यूनियन विद वाइडली वेरिंग मेंबर साइजेस फॉर द लार्जर डेटा टाइप्स, कंसिडर यूजिंग पॉइंटर्स इंस्टेड। ऐसा ना हो कि एक एरे कर दे, एक स्ट्रक्चर कर दें तो वो बहुत ज़्यादा मेमोरी वेस्टेज हो जाएगी, उसके लिए बेहतर है कि आप पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर लें। यूनियंस में ओनली बी इनिशियलाइज्ड टू अ वैल्यू अप्रोप्रिएट फॉर द टाइप ऑफ इट्स फर्स्ट मेंबर। तो लाइक स्ट्रक्चर्स, एवरी मेंबर दे ऑक्युपाइज द सेम रीजन ऑफ मेमोरी। स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मेंबर्स आर एंड टुगेदर होते हैं, द नेम एंड स्पीशीज एंड ओनर। यूनियन के मेंबर्स जो हैं वो बेसिकली और होते हैं, एक्स और। तो इसमें से आगे अगर हम इसका हवाले से देखेंगे तो फ्लोट, इंट और कैरेक्टर एस, तो या ये एक्स और हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो ये या तो आइदर एट एनी गिवन टाइम या तो ये फ्लोट में होगा या एन इंट होगा या एक स्ट्रिंग होगा। It's up to the programmers to determine how to interpret a union, means which member to access. So it is often used in conjunction with the type variable that indicates how to interpret the union value. जैसे enumerated type है, हमने एक define की है int float string, और उसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि struct is a variable, tag बता रहे हैं enumerated type और union value, access type to determine how to interpret a वैल्यू। वैलिड ऑपरेशंस इसके साथ क्या हो सकते हैं कि आप असाइनमेंट कर सकते हैं यूनियन ऑफ द सेम टाइप, यू कैन टेक द एड्रेस, यू कैन एक्सेस द यूनियन मेंबर यूजिंग द डॉट ऑपरेटर एंड इनडायरेक्टली यू कैन एक्सेसिंग द मेंबर यूजिंग द पॉइंटर्स। थोड़ा सा एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि हाउ टू डिफाइन यूनियन, इनिशियलाइज वेरिएबल्स, वी विल सेट द वेरिएबल्स एंड विल प्रिंट। तो यहाँ पर हमने एक यूनियन डिफाइन किया है जिसके दो मेंबर्स हैं, दो मेंबर्स में से कोई एक हो सकता है, एक इंट एक्स है और एक डबल वाई है, तो मैक्सिमम एलोकेशन डबल के हवाले से हो जाएगी। यहाँ पर हम उसका एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, विच इज़ द नेम ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि उसके फ़िलहाल हम उसके वैल्यू एक्स को एक्सेस कर रहे हैं और उसको 100 वैल्यू असाइन की, और अब उसमें हम उसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमने इंटीजर मेंबर को वैल्यू दी है और दोनों मेंबर्स को प्रिंट करके देख रहे हैं कि क्या होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम y के अंदर वैल्यू 100.0 दे रहे हैं और फिर हम उसी दोनों को प्रिंट करवा के देख रहे हैं कि क्या वैल्यू प्रिंट होगी, और उसके बाद प्रोग्राम को हम टर्मिनेट कर रहे हैं नॉर्मली। इसकी आउटपुट में अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि जो पहली दफ़ा पुट अ वैल्यू द इंटीजर मेंबर एंड प्रिंट बोथ मेंबर, तो इंटीजर में चूँकि आपने 100 किया था तो वो, और डबल को आप जब प्रिंट करवाएंगे तो वो गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है जिसको आप हतमी तौर पर नहीं बता सकते। पुट अ वैल्यू इन द फ्लोट, क्योंकि वो बेसिकली पहली 2 बाइट्स पे तो आपने 4 बाइट्स पे तो दे दिया, नेक्स्ट 4 पे चूँकि अनडिफाइंड है तो इसलिए वो गड़बड़ा रही है। पुट अ वैल्यू इन द फ्लोटिंग नंबर एंड प्रिंट बोथ नंबर, तो उसमें इंट में वो 0 डिस्प्ले करेगा और डबल में 100.0 डिस्प्ले करेगा। थोड़ा सा स्ट्रिंग को भी देख लेते हैं। इट इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंड एंड विद अ नल बाइट, जिसको /0 के साथ हम करते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स इम्प्लिसिटली प्रोवाइड द नल टर्मिनेटर, मीन्स कि जब आप इसको कॉन्स्टेंटली डिफाइन करते हैं तो ये एक्चुअली बिकम बन जाता है HELLO और उसके बाद /0 ऑटोमेटिकली हो जाता है। सी अगर स्ट्रिंग्स में हम देखें तो अ स्ट्रिंग इज द कैरेक्टर एरे एंडिंग इन /0। जैसे हम कहते हैं कि कैरेक्टर एस साइज डिटरमिन कर रहे हैं, ये हम वो कॉन्स्टेंटली उसको कैरेक्टर पॉइंटर बना रहे हैं कि दिस इज एन अनइनिशियलाइज्ड स्ट्रिंग, और कैरेक्टर उसमें दिस इज एन अनदर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कॉन्टेंट्स जो कॉन्स्टेंट्स हैं दे आर यूज्ड इन डबल कोट्स, चाहे वो ये डबल कोटेड सेल्फ हो या सिंगल कोट हो। And string constants may not span the lines, however they may be concatenated, जैसे hello और world को है is the same as hello world, इस तरह। इसमें हम ये देखते हैं string in C के हवाले से कि let the it's a pointer to you, this is another string, तो फिर हम उसको जब कर सकते हैं तो इसको हम individual as an array के तौर पर भी एक्सेस कर सकते हैं। स्पोर्ट्स अगर हम फॉर देखना चाहें स्ट्रिंग इन द सी लैंग्वेज, तो मोस्ट स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इज डन द फंक्शन जो कि स्ट्रिंग एच में है। स्ट्रिंग फंक्शंस डिपेंड अपॉन द फाइनल जो है वो /0 के साथ है, सो यू डोंट हैव टू काउंट द कैरेक्टर्स।
जैसे एग्जांपल है कि स्ट्रिंग लेंथ जो है रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्सक्लूडिंग द फाइनल देस। अगर str कॉपी अगर इस्तेमाल करें, इट कॉपीज फ्रॉम द काउंट टू s string and returns the s must be big enough to hold the contents of ct and ct may be smaller than s। इसके अलावा स्ट्रिंग कंपेयर है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का आपने देखा, स्ट्रिंग कंपेयर दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके लॉजिकल लेक्सिकली कंपेयर करेगा और उसको अगर वो s जो है वो t से छोटा है तो वो लेस देन 0 की वैल्यू रिटर्न करेगा और ग्रेटर देन 0 करेगा अगर s जो है वो आइडेंटिकल है। str कैट जो है वो उसको वो करेगा अपना कॉन्कैटिनेशन करेगा टू ऑन टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मीन्स कि उसके एंड पे डाल देगा s मस्ट बी बिग इनफ टू होल्ड द कंटेंट्स ऑफ बोथ। उसके अलावा str कैरेक्टर, str कैरेक्टर, str spn, str scpn ये आप अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ctype.h में कुछ कैरेक्टर हैंडलिंग लाइब्रेरी है जिसमें is digit, is alpha, is accent, is lower, is upper, to lower, to upper, is space, जो इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करके ये उसके हवाले से करेगा। तो ये रिटर्न ट्रू इफ सी इज अ डिजिट एंड फॉल्स अदरवाइज। तो उसके अलावा std लिब के अंदर में a to f, a to i इस किस्म के भी हैं। ये आपका कन्वर्जन के लिए होता है कि आप किसी कैरेक्टर को डबल में कन्वर्ट करना चाहें फ्लोट से, और ये है कि आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें, किसी लॉन्ग को आप जो कैरेक्टर को जो है लॉन्ग में करना चाहें। इसी तरह आप उसके strtod जो है वो और strtol और लॉन्ग के लिए भी कन्वर्जन के लिए भी बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन मौजूद हैं। Dilemma क्या है कि if strings are array of characters and if arrays cannot be returned from functions, how we can manipulate variable length strings and pass them around our programs? The best answer is you use the storage allocated in the heap। इसको फिर आप new and delete के साथ करें या malloc के साथ करें। तो C का स्टाइल का मल्टी डायमेंशनल को भी most high level languages they support arrays with more than one dimension। 2D arrays are useful when data has to be arranged in the tabular form। Higher dimensional arrays appropriate when several characteristics are associated with data। Example है कि a table of test scores for several different students on several different tests, तो वो इस किस्म का होगा डेटा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए we have to use multi-dimensional arrays। तो इसको 2 dimensional array हम इस्तेमाल करेंगे। डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि एलिमेंट टाइप होगी, उसमें एलिमेंट नेम होगा और उसके बाद नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हम बताएंगे। जैसे हमने कहा कि कांस्टेंट नम रोज 30, नम कॉलम्स 4, तो डबल स्कोर टेबल्स जो है वो हम उसमें कांस्टेंट बता के तो हम इसको ये 4 कॉलम्स और तकरीबन 30 रोज का 4 कॉलम्स और 30 रोज का एक 2 डायमेंशनल एरे डिफाइन करना है जिसका हर एलिमेंट जो है उसकी टाइप डबल है। Initialization, you can list the initial values in braces row by row, first row, second row. You may use internal braces for each row to improve the readability. Processing इसकी कैसे होगी कि remember rows and columns they are numbered from zeros, so you use doubly indexed variables। जो है वो ये आपको row index और ये column index होगा, तो ये counting from zero start होगी। and you have to use the nested loops to vary the 2 indices। मोस्ट ऑफन इज द रो वाइज मैनर होता है। हायर डायमेंशनल एरे इसी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर द 3 डायमेंशनल टू स्टोर एंड प्रोसेस अ टेबल ऑफ टेस्ट स्कोर्स फॉर सेवरल डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑन सेवरल डिफरेंट टेस्ट फॉर सेवरल डिफरेंट सेमेस्टर्स। तो उसके लिए आप तीसरा कॉन्स्टेंट भी डाल दें तो वो सेमेस्टर के हिसाब से ये 3rd पे चला जाएगा। तो ग्रेड बुक जो है 432 मीन्स इज द स्कोर्स ऑफ द 4th सेमेस्टर फॉर द स्टूडेंट 2 ऑन टेस्ट 3। तो ये आप दे आर ऑल काउंटेड फ्रॉम 0 इन द C लैंग्वेज। एरेज ऑफ को हम कह सकते हैं कि जो मल्टी डायमेंशनल 2 डायमेंशनल इट्स एन एरे ऑफ एरे। तो डिक्लेयर्स दिस कोड टू बी 1 डायमेंशनल एरे कंटेनिंग 30 एलिमेंट्स ईच ऑफ विच इज अ 1 डायमेंशनल एरे ऑफ 4 रियल नंबर्स। तो द टेस्ट इज अ 1 डायमेंशनल एरे ऑफ रोज ईच ऑफ विच हैज 4 रियल वैल्यूज। वी कैन डिक्लेयर इट आल्सो एज टाइप डेफ के जरिए भी हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको यूं को भी कर सकते हैं एंड फाइनली यूं भी कर सकते हैं। इन एनी केस अगर हम देखा जाए तो ये इज द ith रो ऑफ द टेबल। ij शुड बी द थॉट ऑफ द फाइंडिंग द jth एलिमेंट। और इसको हम एड्रेस ट्रांसलेशन इसकी अगर हम करना चाहें तो एरे ऑफ एरे स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरेज एक्सप्लेन द एड्रेस। तो बेस एड्रेस अगर इसका ये है तो अगर आपका जो टेबल 10 4 का जो एलिमेंट है
उसका जो एड्रेस होगा वो यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो वो 10 से आप रेफरेंस करेंगे साइज़ ऑफ रो ऑफ टेबल, फिर उसके अंदर आप करेंगे कॉलम के हिसाब से, और फिर आप उसके अंदर यहाँ से बेस का करेंगे +3 साइज ऑफ टेबल, तो you can easily calculate. In general, an n-dimensional array can be viewed recursively as a one-dimensional array whose elements are n-1 dimensional arrays. Implementing इनकी करनी हो तो वो इनकी implement more complicated है than one dimensional. Memory organized as the sequence of memory location and is thus 1D. तो how to use a 1D structure to support a multi-dimensional structure? तो उसके लिए a character requires a single byte. So compiler instructed to reserve 12 consecutive bytes. Two ways, इसको हम रो वाइज भी स्टोर कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटिंग मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो देखा जाए तो रो वाइज तो फिर यूं स्टोर होगा, और अगर रो वाइज स्टोरेज होगी तो फिर ABCDEFGHIJKL इस तरह होगा। और अगर कॉलम वाइज अगर स्टोरेज करना चाहेंगे तो उसकी सेम मेमोरी जो है इट्स अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, तो AEIBFJCGKDHJ, तो वो उस हवाले से होगा। अगर हम आज के लेक्चर की समरी को देखें तो वी टॉक अबाउट, हमने आज को डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट को पॉइंटर के साथ देखा, बहुत डिटेल से देखा। हमने malloc फंक्शन के ज़रिए हम हीप से कैसे एलोकेशन कर सकते हैं, cloc के ज़रिए कैसे कर सकते हैं, फ्री के ज़रिए हम कैसे हीप को मेमोरी वापस भेज सकते हैं जो हमने डी एलोकेट करनी है, रीअलॉक अगर हमें ज़रूरत पड़े तो प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो रीअलॉक के ज़रिए कर सकते हैं। फिर हमने इसको C++ में उसके लिए करस्पॉन्डिंग न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स को देखा, हमने उसके हवाले से एग्जांपल्स देखनी। डैंगलिंग रेफरेंस और मेमोरी लीक्स को हमने बड़े गौर से देखा, इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से रखना है। उसके अलावा हमने बेसिकली थोड़ा सा रिव्यू किया स्ट्रक्चर्स को, सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्स के हवाले से उसकी डेक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, एक्सेसिंग कैसे हैं, कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। यूनियंस के हवाले से हमने थोड़ा सा देखा कि उसकी डेक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, उसकी एक्सेसिंग और उसकी वो क्या होती है। फिर हमने स्ट्रिंग्स के हवाले से क्विकली कुछ थोड़ा सा देखा कि उसकी हम वो बेसिकली वन डायमेंशनल एरे ही होते हैं। फिर उस पर जो बिल्ट इन फंक्शंस जो हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड कर रही है, हमने उसको भी एक नज़र देखा। और उसके अलावा हमने एंड पे मल्टी डायमेंशनल को देखा कि वो बेसिकली क्या है और उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो आज के लेक्चर में हमने ज़्यादातर तो जो रिवीजन है सी की वो मुकम्मल कर ली है और उसमें कॉन्सेप्ट्स को एक डिफरेंट एंगल से देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।